Hello children, in this video I would like to tell you about certain uses of bad conductors and good conductors. In my previous video I told you that there are certain substances which allow the heat to pass through them, which are called as good conductors, and other substances which do not allow the heat to pass through them are called as bad conductors, or we can say them as insulators. Now, good conductors and bad conductors can be used in day-to-day life. Let us take certain examples. You know that we use matters to make the cooking utensils. Why? Because these are good conductors. They quickly transfer the heat of the flame to the food items kept inside them. And the food items as a result get heated up and cooked. Matters are used for making kettles, boilers, boiler tubes. The reason is same, because they easily transfer the heat. Now we use wood or plastic for making the handles of tea kettles, of utensils. These handles help us to hold these objects with quite safety, because all the utensils are hot and their handles are made up of wood or plastic. Reason being, because both of these things are insulators and they do not let the heat to get transferred to our hands. Now, use of bricks and muds is also there for making the houses. We know that for making houses we use bricks and mud, because these protect us from the heat of the sun during the summer, as these materials are bad conductors of heat. Hence, they do not allow the outside heat to reach inside the house. It is this reason that rooms and tin roofs often become hot during summers. बहुत से आपने देखे होंगे छतें टीन की बनी हुई होती हैं, तो समर्स के वक्त में कितनी गर्म हो जाती हैं. उस रूम में या उसके शेड में हम ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते. रीज़न बिकॉज दे ईजिली ट्रांसफर द हीट. बट द ब्रिक्स एंड मड which are used for making house, they don't allow the heat to come inside the house. Now, air is a bad conductor of heat. Blankets, woolen clothes, quilts often stay warm, help us to stay warm in winter. They all make use of the bad conductivity of air. These blankets, quilts, woolen clothes, they trap a layer of air between themselves and our body. And this trapping is much better if the quilt is new. अगर नई रज़ाई होती है तो एयर की ट्रैपिंग बहुत अच्छी होती है. तो जितने भी वुलन क्लोथ्स होते हैं, ब्लैंकेट होती हैं, रजाइयाँ होती हैं, ये हमारी बॉडी और अपने बीच एक लेयर की क्या बना देती हैं, एक लेयर बना देती हैं एयर की. और सिंस एयर इज़ अ बैड कंडक्टर, तो वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती, वो एयर की लेयर. एंड थ्रू दिस ट्रैप्ड एयर वी स्टे वार्म. आइस बॉक्सेस आर ऑफन मेड एज डबल वॉल्ड कंटेनर. आपने आइस बॉक्सेस को ध्यान से देखें, जिसमें बर्फ़ रखते हैं, पानी भी रख देते हैं, फ्रूट भी रख देते हैं. उनकी डबल वॉल होती है और दोनों वॉल्स के बीच में क्या ट्रैप्ड रहती है, एयर रहती है, विच डज नॉट ईजिली लेट द आउटसाइड हीट टू रीच द आइस कैप्ड इनसाइड द बॉक्स. इसलिए इन चीज़ों में एयर का यूज़ किया जाता है, बिकॉज वी नो दैट एयर इज़ अ बैड कंडक्टर and it will not allow the heat to pass through it. Now I already told you about conduction, which is one of the method of the heat transfer. There is another method of transferring the heat, which is convection. Water is a very poor conductor of heat. Even then, when we put water in a kettle and heat it over a flame, the water gets heated up. How?
पानी एक बैड कंडक्टर है, उसके बाद भी जब हम फ्लेम पर रखते हैं किसी केटल के अंदर पानी तो गर्म हो जाता है. हाउ दिस हैपन्स? We know that the molecules of liquids or gases are free to move. They have intermolecular space. जबकि सॉलिड्स में कोई इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता, उनके मॉलिक्यूल्स फिक्स होते हैं. बट लिक्विड और गैसेस के मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं. इट इज़ दिस एबिलिटी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स टू मूव अराउंड एंड दैट कॉजेज अ लिक्विड टू हीट अप. और इन मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की वजह से ही पूरा वाटर हीट अप हो जाता है. And we call this method as convection. This is another method of heat transfer. Now, this method of heat convection can be understood with the help of an activity. Just see this activity. In this, we have taken a round bottom flask. ये जो फ्लास्क बनी हुई है कांच की है, राउंड बॉटम है क्योंकि इसका बॉटम राउंड है. और एक नीचे ट्राईपॉड स्टैंड लिया है. ट्राईपॉड इसलिए क्योंकि ये इसमें 3 पैर होते हैं, इसके ऊपर एक खड़ा हो जाता है ये आयरन का. और उसके ऊपर एक वायर गॉज रख के हमने वी कीप द फ्लास्क ओवर द वायर गॉज एंड केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द ट्राईपॉड स्टैंड. नाउ वी हैव हाफ फिल्ड इट विद वाटर. हमने राउंड बॉटम ग्लास को पानी से भर लिया आधा और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाल दिए थोड़े से और बर्नर को ऑन कर दिया. क्या ऑब्जर्व करेंगे? व्हाट विल बी आवर ऑब्जर्वेशन? वी विल ऑब्जर्व स्ट्रीक्स ऑफ कलर मूविंग अप एंड देन कमिंग डाउन. थोड़ी देर बाद हमें देखेंगे कि पोटेशियम मैग्नेट के क्रिस्टल्स का जो मैजेंटा कलर है वो उस स्ट्रीक्स की फॉर्म में ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है. एक साइक्लिक मूवमेंट हमको नज़र आएगा. इट विल कंटिन्यू फॉर अ वाइल. और धीरे धीरे पूरा का पूरा पानी कलर पूरे के पूरे पानी में वही कलर हो जाएगा और वो हीट अप भी हो जाएगा. हाउ डू वी अंडरस्टैंड द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द कलर स्ट्रीक? होता क्या है? द वाटर एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क. सबसे पहले जब हम देख रहे हैं कि नीचे हमारा बर्नर जल रहा है तो सबसे पहले फ्लास्क के नीचे वाला पानी गर्म हो जाता है. द वाटर एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क गेट हीटेड अप. एज अ रिजल्ट इट बिकम्स लाइटर. और गर्म होने पर चीज़ें हल्की हो जाती हैं तो इट बिकम्स लाइटर. और लाइटर होने की वजह से, हल्के होने की वजह से नीचे के गर्म मॉलिक्यूल्स जो कि फ्री हैं मूव करने के लिए, they get heated up and move up. और वो ऊपर आने लगते हैं. और ऊपर के मॉलिक्यूल्स जो हैवी होते हैं और ठंडे होते हैं वो नीचे की तरफ आने लगते हैं, है ना. जो जगह खाली हुई है नीचे की मॉलिक्यूल्स से, उस जगह ऊपर के हैवी और ठंडे मॉलिक्यूल्स आने लगते हैं. इट इज़ दिस मूवमेंट दैट वी सी इन द फॉर्म ऑफ कलर्ड स्ट्रीक. यही मूवमेंट दिखाई देता है जिसे हम स्ट्रीक्स की फॉर्म में देखते हैं कि ऊपर के मॉलिक्यूल्स जो हैवी हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं और नीचे के मॉलिक्यूल्स जो गर्म और हल्के हैं वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं. इट इज़ दिस मूवमेंट दैट वी सी इन द फॉर्म ऑफ कलर्ड स्ट्रीक्स एंड बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट द होल वाटर सून गेट्स हीटेड अप. एंड these movements, these cyclic movements of molecules is called as convectional current. डे टू डे लाइफ में कन्वेक्शन करंट्स का बहुत यूज़ होता है. जितने भी विंडोज़ होते हैं, वेंटिलेटर्स होते हैं, चिमनीज़, रेडिएटर्स इन द कार, these are the common examples, common applications that are based on the convection current. So this was the method of another heat transfer method called as convection. Hope you have understood this.